Okay, so once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Uh, um, Even though we are joining late, I'm joining late. You have joined on time, but I joined late because of some issues, as I mentioned. So let us start the session without wasting time because we still have 15-20 minutes. We can cover at least a concept. Okay, so at least whatever time we are investing, so we will get an output for that also. Okay, so yesterday, first of all, we'll see what we have done in the last session. Okay, so we have seen, I think, IP packet delivery topic. Okay, and as I told you that in these three slides, one, two, three. Okay, so this is regarding IP packet delivery, that how the IP packet is being delivered to the destination, whether it is a mobile node or a fixed node. Okay, so in this case, we have seen in this case we have seen that how mobile node is how the packet is delivered to the mobile node, okay, which is visiting in a foreign location, which is visiting in a foreign network, and your foreign agent is being handled by the foreign network is being administered by foreign agent. You can see over here, okay, यहाँ पर आपका foreign agent है. So these seven terminologies you will be going through again and again, like you are having correspondent node, then mobile node, then home agent, then foreign agent, then home network, foreign network, and care of address. Okay, so these terminologies you need to remember, you need to keep in mind. Okay, so this is it was a diagram for IP packet delivery. So the step one we have seen in the last session, that was like a correspondent node is trying to transmit the data to the mobile node. Okay, so in step number one you can see that the packets are going to the home agent, to the home network first. Okay, because ideally the mobile node should be present in the home network itself. आफ्टर रीचिंग दिस होम नेटवर्क, ओके, पता चला कि भाई साहब ये आपका जो मोबाइल नोड है, इट इज नॉट करंटली प्रेजेंट इन द होम नेटवर्क, इट इज करंटली प्रेजेंट इन द फॉरेन नेटवर्क. ओके, देन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल नोड जो कि यहाँ पर घूम रहा है, तो इसका जो एड्रेस है दैट विल बी नोन, दैट विल बी we will get that address from this home agent, okay, router. So with the help of that address will reach, okay, to the foreign agent, which is the address of the care of address. Okay, and then foreign agent will forward our packet, that packet will be forwarded from this care of address to the mobile node, okay, properly to the foreign network. So step number one, step number two, step number three, and the step number four, your mobile network will give the feedback, will give the acknowledgement. Okay, not it will give the acknowledgement, but the acknowledgement packet will come back to the correspondent node from mobile node. Okay, तो इस mobile nodes के जरिए आपका जो acknowledgement है, that acknowledgement will come like this. Okay, so this is the complete journey of, we can say, IP packet. Okay, so how it is delivered from correspondent node to the mobile node. Okay, so ये हम लोग ने केस देखा. कल तक हम लोग ने ये देखा था. उसके आगे आगे चलते हैं. एजेंट डिस्कवरी. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट के एजेंट को डिस्कवर करना, ये भी इसके पीछे दो मतलब अलग अलग मेथड है हाउ द एजेंट्स आर डिस्कवर्ड. लाइक इफ एनी मोबाइल नोड विच इज विजिटिंग, if we have any mobile node which is visiting a new location, that is the foreign location, like in this diagram you can see your mobile node is visiting right now, your mobile node is visiting into the foreign network. Okay, तो जब ये फॉरेन नेटवर्क में जब ये एंटर करेगा, तो मोबाइल नेटवर्क पहले किसको ढूंढेगा? सबसे पहले एजेंट को ढूंढेगा. ठीक है, सबसे पहले एजेंट को ढूंढेगा, एजेंट से पहले पता करेगा. ठीक है, यहाँ पर होटल कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर मतलब कि रहने के लिए कहाँ रहेगा. ओके, यहाँ पर ये चीज़ कहाँ मिलेंगी, ये चीज़ कहाँ मिलेंगी. सो एवरीथिंग इट विल टेक द डिटेल जस्ट लाइक वी डू इन आर रियल लाइफ. तो वैसे ही यहाँ पर आपका मोबाइल नोड पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा. किसी भी न्यू नेटवर्क में जाने के बाद, अपने होम नेटवर्क के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के बाद में, योर मोबाइल नोड हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ. ओके, हालांकि रजिस्टर्ड है वो होम नेटवर्क में, बट यहाँ पर अपना प्रेजेंस जाहिर करना पड़ेगा ना उसको. योर मोबाइल नोड हैज टू एक्सप्रेस कि भाई साहब मैं अभी आपके नेटवर्क में हूँ, मुझे आपकी सर्विसेज यूज करनी है,
इसके लिए मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन फॉरेन एजेंट विल लेट हिम नो कि भाई साहब आपको क्या करना है, पहले रजिस्टर करना है ये, ठीक है। अच्छा, अब इतने बड़े नेटवर्क में हाउ योर मोबाइल नोड विल कम टू नो, हाउ योर मोबाइल नोड विल कम टू नो दैट कि भाई ये वाला एजेंट है या यही एजेंट है या ये एजेंट है। हाउ योर मोबाइल नोड विल कम टू नो अबाउट द फॉरेन एजेंट, who is foreign agent, your mobile node is not having any idea about it, okay? So how it will come to know, उसके लिए हमारे पास में कुछ मेथड है, ठीक है। Agent discovery, one initial problem of a mobile node after moving is how to find a foreign agent, as I told you right now, कि जैसे आपका मोबाइल नोड किसी न्यू एरिया में जाएगा तो उसको क्या करना है, उसको पहले ढूंढना है, फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, फॉरेन एजेंट को फाइंड आउट करना है, ओके। How does the mobile node discover that it has moved, okay? ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? Now for this purpose mobile IP describe two method, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो द फर्स्ट इज एजेंट एडवर्टाइजमेंट एंड द सेकेंड इज एजेंट सॉलिसिटेशन। तो ये दो मेथड है which are in fact router discovery method plus extension basically। तो यहाँ पर एक्चुअली ये है कुछ नहीं, राउटर डिस्कवरी जो भी आपका एजेंट है, एजेंट भी क्या आपका राउटर है, ठीक है। तो राउटर अपने आप को एक्सपोज कैसे करे, राउटर अपने आप को कैसे प्रोपोगेट करे, सो दैट इफ देयर इज एनी न्यू पर्सन देन, या तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी न्यू न्यू एरिया में जाते हो तो वहां पर एजेंट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं मे बी, आप गेटवे ऑफ इंडिया पे गए, आप गेट ऑफ इंडिया पे जाने के बाद में वहां पर एजेंट्स होते हैं, भाई आपको राइड करनी है, आपको बोट में जाना है, ठीक है, देखो इतना इतना लगेगा, वहां पे मिल नहीं रही है आपको, ठीक है। हाँ तो मैं आपको करके देता हूँ, अरेंज करके देता हूँ सारा। जैसे आजकल क्या हो रहा है लोग जो है डोमेस्टिक फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट जो भी है उनका फ्लाइट से आ रहे हैं तो उसके लिए उनको 14 डेज क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर मैं जो सुना हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना पड़ रहा है, तो बाहर 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 बहुत सारे एजेंट है, ठीक है। आपका क्या काम है, आपको क्या चाहिए, क्वारंटाइन होना है, सब होना है, ठीक है, हम सब करेंगे। एक बंदे का 20,000 रुपए, एक बंदे का 25,000 रुपए, ठीक है। तो दे आर जस्ट आस्किंग लाइक दैट बिकॉज दे आर द एजेंट एंड दे आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, एक्सेस उनको बहुत सारा है। ये जाएंगे, आपका 14 डेज का काम 2-4 दिन में निपटा देंगे और आपको इवन आपको जो है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा सब कुछ का, यू हैव बीन क्वारंटाइन फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ डेज, ओके, इन दिस होटल एंड ऑल दैट। तो उनके सब कॉन्टैक्ट है, वो सब कर आके आपको 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में आपको दे देंगे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 14 डेज आपका आधे आधे इसमें काम हो जाएगा, तो फॉर दैट दे आर चार्जिंग, ओके। तो ऐसा ऐसा जो है ना कुछ एजेंट होता है, तो एजेंट अपने आपको क्या करते हैं, वहां पर एजेंट घूमते रहेंगे, क्या भाई क्या करना है आपको, ये करना है, आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है, चलो हम लोग कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो जैसा एजेंट वहां काम करते हैं वैसे एजेंट यहाँ पर भी काम करते हैं, बिकॉज जब भी कोई नया नोट दिखा, जब भी कोई नया बकरा फंसा, तो उन लोग कैसे बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, भाई बकरा फंसा। तो वैसे यहाँ पर हमारा कोई नया नोड अगर कभी नेटवर्क में दिखा तो आपका जो एजेंट है वो क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली कैचअप करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एजेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, so that सामने वाला नया पर्सन विल कम टू नो अबाउट दिस एजेंट, ओके, कि भाई हाँ ये एजेंट है और ये मेरा काम करके देगा। एजेंट एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, ठीक है। अब बहुत बात हो गई कि भाई एजेंट को अपने आप को एक्सपोज करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब पहला जो मेथड है वो है एजेंट एडवर्टाइजमेंट। So this is the first method, which is agent advertisement. Here the foreign agent and the home agent advertise their presence periodically using special agent advertisement messages. अब भाई साहब ये नेटवर्क है आपका, ठीक है, सॉरी। तो आपके जो एजेंट है दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज, दे आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ मैसेज जिसको बोलते हैं स्पेशल एजेंट एडवर्टाइजिंग मैसेज, ओके। तो एक मैसेज होगा, ये मैसेज को क्या करेगा, अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, अपने नेटवर्क में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, अपने नेटवर्क में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। और जो अगर कोई नया नोड, कोई नया अगर मोबाइल नोड जैसे फॉर एग्जांपल आता है अपने नेटवर्क में, तो उसको भी ये मैसेज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ब्रॉडकास्ट मैसेज हर किसी को मिलते हैं, ठीक है।
अगर कभी इट इज फॉर ऑल द पर्सन हु आर इन द नेटवर्क, तो जो भी नेटवर्क में नया बंदा रहेगा उसको मैसेज मिलेगा, अच्छा ये एक है, मतलब ये एक क्या है, एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट मेरा काम कर, तो एजेंट के नंबर पे फोन लगाएंगे, ओके। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल चलते चलते पता चला आप किसी न्यू एरिया में गए, न्यू सिटी में गए, वहां पर आपको एक पैम्पलेट मिला, ठीक है, उसके अंदर आपको होटल का या किसी ऐसी जगह का पता चला जहाँ पर कहीं ऑफ है, या फिर कुछ आपको थोड़ा सा फैसिलिटी दिखी, तो आप रखेंगे, बाद में उसको कॉल करेंगे। तो वो कैसे हुआ, वो इट वाज पॉसिबल थ्रू दैट पैम्पलेट, जो भी स्प्रेडिंग था उसके थ्रू पॉसिबल हुआ। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका जो एजेंट है अपने नेटवर्क में, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज का, एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस मैसेज का नाम है स्पेशल एडवर्टाइजमेंट मैसेज, ओके। तो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट मैसेज का जो भी है वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। अब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है आपके नेटवर्क में, अब उसी में क्या हो रहा है, कोई एक नया बंदा आपके नेटवर्क में आया, तो आएगा तो वो मैसेज उसको भी मिलेगा, जब वो मैसेज उसको मिलेगा तो क्या करेगा फिर वो, ओके आई गॉट दिस मैसेज एंड ही इज द न्यू, ही इज द एजेंट, जो कि इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एजेंट है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये मेरा फॉरेन एजेंट है, मतलब ठीक है, मतलब मुझे इससे कांटेक्ट करना है अपनी सारी फैसिलिटी के लिए, ओके। तो फिर वो उससे उससे कम्युनिकेट करेगा, उसका रिप्लाई देगा, और जब रिप्लाई आएगा आपके एजेंट को तो फिर उसे कम्युनिकेट करके उसको अंदर लेगा। एंड दीज एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस कैन बी सीन एज अ बीकन ब्रॉडकास्ट, ओके। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस होते हैं इनको बीकन ब्रॉडकास्ट भी बोलते हैं, उनके सबनेट में या उनके नेटवर्क में, सिंपल बोलो, ठीक है। For these advertisement, Internet Control Messaging Protocol, that is ICMP messages according to RFC. This is the document that is RFC 1256. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि RFC, यहाँ पर भी कहीं तो RFC आप लोगों ने देखा होगा, RFC, हाँ देखो RFC 3344। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, all these terminologies are mentioned in the RFC 3344, ओके। वैसे ही इस बीकन ब्रॉडकास्ट के बारे में, और कहाँ है भाई हम लोग, हाँ, इस आईसीएमपी के बारे में और दिस मोबिलिटी, मतलब इस एजेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में आरएफसी 1256 नाम के डॉक्यूमेंट में कहीं तो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। Routers in the fixed network implementing this standard also advertise their routing service periodically to the attached link, ठीक है। तब बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट कर करके, चिल्ला चिल्ला के एजेंट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर करके सबको बताएगा, ठीक है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ओके, वी कैन रिपेयर दी फ्रिजेस ऑल्सो, वी कैन रिपेयर ओवन्स ऑल्सो, ओके, हम आपके कपड़े भी धो कर देंगे, ओके, हम आपको खाना भी घर पे ला के देंगे, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज विच एजेंट इज प्रोवाइडिंग टू द न्यू कमर्स, ओके। तो ये उसके लिए ऑब्वियसली वो चार्ज करेंगे, बट वो अपनी अपनी सर्विसेज बता रहे हैं। वैसे ही एजेंट क्या कर रहा है, अपने अपने नेटवर्क में वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है, ओके। You want to connect to the network, then we are here to connect you, okay, for that we are going to charge, but we will connect you, okay, you will get a SIM card, okay, डेली लिमिट आपको इतनी मिलेंगी, इतने इतने मैसेजेस मिलेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे, वो अपनी अपनी क्या बोलेंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जब एडवर्टाइजमेंट ये किसी को मिलेंगी, द पर्सन हु इज न्यू इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो व्हेन दे विल रिसीव दिस मैसेज, ओके, ये है एजेंट है, ये एजेंट को फिर लोग कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड देन सो ऑन, okay. No, the concept of this MCC are same like our real time problems and our real time issues, okay. तो जो भी हम लोग रियल टाइम में करते हैं ना, जैसे आपको तो हर किसी के लिए जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो अपने रियल टाइम में से ही निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो थिंग्स आर लाइक दैट ओनली, बहुत सिंपल है, खाली आपको खाली एक बार पढ़ना है, थियरी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। डायग्राम्स आपके बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम एंड यू मस्ट रिमेंबर द डायग्राम for writing the answers of the questions, okay. I hope you people are understanding what we are learning right now, okay. So this is about the agent discovery, and दो मेथड है एजेंट डिस्कवरी के, वन इज एजेंट एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट का हम लोगों ने पढ़ा, और एजेंट एडवर्टाइजमेंट का एक पैकेट है, प्लस मोबिलिटी एक्सटेंशन का भी है, तो दोनों का पैकेट साथ में मिला के मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, एजेंट एडवर्टीजमेंट पैकेट। अब एजेंट अपने आप को जो एडवर्टाइज करेगा, मैंने क्या बोला आपको, agent will advertise himself के okay I can do this, I can do this, I can do this and I can do this, okay. So 4-5 सर्विसेज जो भी हम लोगों ने मेंशन किए कि, तो ये जो होगा, ये जो पैकेट जाएगा, उस पैकेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये, ओके। तो यहाँ पर देखो टाइप है, कोड है, ये टोटल 32 बिट का है, 32 बिट का पैकेट आपका है, ठीक है। उसमें से आपका 8 बिट टाइप,
8 बिट कोड, उसके बाद में फिर आपका 16 बिट चेकसम। चेकसम जरूरी है आपको, बिकॉज अगर पैकेट का ऑथेंटिकेट करना है कि पैकेट प्रॉपरली ऑथेंटिकेट है तो उसके लिए आपको चेकसम लगाना जरूरी है। चेकसम इज फॉर एरर डिटेक्शन, डोंट वरी। लाइफ टाइम, वो पैकेट कब तक वैलिड है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो होते हैं उनकी एक लाइफ होती है, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ओके, इन द नेटवर्क, दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग इन द नेटवर्क, सो दे आर हैविंग सम लाइफ टाइम। तो दैट लाइफ टाइम के लिए वो क्या करेंगे, घूमेंगे, और जहाँ हो गया वहां पर वो खुश, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो 8 बिट्स के इसके कुछ टाइप्स हैं। राउटर एड्रेस, प्रेफरेंस लेवल 1, राउटर एड्रेस 2, प्रेफरेंस लेवल 2। तो उसके जो आसपास के जो राउटर्स है, तो वो राउटर्स के एड्रेस भी इसमें लिखे रहेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला, ठीक है, बट मुझे ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला, बट राइट नाउ मैं जिस एरिया में हूँ, तो मैं राउटर मतलब मैं सेकंड राउटर के नजदीक हूँ, ठीक है, मैं सेकंड राउटर के नजदीक हूँ, मैं फर्स्ट राउटर के नजदीक नहीं हूँ। तो आई विल कनेक्ट टू द राउटर नंबर 2 लाइक दैट, ठीक है। और उसका प्रेफरेंस लेवल क्या है, तो उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बस जस्ट टू ब्रॉडकास्ट द थिंग एंड से कि भाई देखो, ये मेरा मैसेज है, मेरा पैम्पलेट है, और आई कैन डू दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो ये एक ऐसा एजेंट को एजेंट अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, वो जो पैकेट होता है आपके सामने, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नीचे उसका उसका जो है तो मोबिलिटी एक्सटेंशन है, और मोबिलिटी एक्सटेंशन इसके लिए है बिकॉज दे आर मूविंग, ओके, राइट नाउ। अभी जो हमारा एरिया है, बिकॉज वी आर इन द न्यू एरिया, तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर द मोबाइल नोड, एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा तो आपका ये काम हो जाएगा। तो वैसे ही आपका काम तो करेगा बराबर, लेकिन आप मूव हुए हैं, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आए, इसके लिए आपको ये मोबिलिटी एक्सटेंशन भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वही वही डायग्राम है। ये डायग्राम एक्चुअली ड्रॉ करते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एजेंट एडवर्टाइजमेंट का अगर अलग से टॉपिक आता है, एजेंट डिस्कवरी, हाउ एजेंट डिस्कवर themselves, how agent discover themselves. So we have two method for that. One is agent advertisement and agent solicitation. तो first is agent advertisement, कैसा करता है इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है, और इसको ड्रॉ करके, ये डायग्राम ड्रॉ करके इसको बताना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एजेंट एडवर्टीजमेंट। सेकेंड है आपका एजेंट सॉलिसिटेशन। लेट मी सी द टाइम, ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा जाए। एजेंट सॉलिसिटेशन में हम लोग इसको एटलीस्ट कम से कम गो थ्रू कर सकते हैं। इफ नो एजेंट एडवर्टीजमेंट आर प्रेजेंट, अगर कोई एजेंट अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, एंड मोबाइल नोड हैज नॉट रिसीव्ड अ केयर ऑफ एड्रेस बाय अदर मींस, द मोबाइल नोड मस्ट सेंड एजेंट सॉलिसिटेशन। मतलब आप पहुंचे, you are a mobile node and you have reached to the new destination, okay, and after entering into the new area, you have not found any agent advertisement। देखा आपने कोई न कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। अरे भाई, यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है क्या जो हमारे ये सब काम कर दे? तो उसके लिए फिर क्या करेगा, आपका जो मोबाइल नोड है ना, मैं खुद आई एम द मोबाइल नोड। सो मैं मोबाइल नोड, मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक पैकेट भेजूंगा, ठीक है, मतलब मेरी तरफ से एक जाएगा पैकेट, और मैं मतलब देखूंगा कि भाई कोई है कि नहीं यहाँ पर कोई एजेंट जो कि मेरे ये काम कर सके, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो फर्स्ट इज एजेंट एडवर्टीजमेंट, जो कि एजेंट की तरफ से होता है, और एक है एजेंट सॉलिसिटेशन, जो कि हमारे मोबाइल नोड की तरफ से होता है। These solicitations are again based on RFC 1256 document for router solicitation। तो बेसिकली ये जो solicitation है, तो this is mentioned in the RFC 1256। थर्ड पॉइंट पे आऊँ, care must be taken to ensure that these solicitation messages do not flood the network। आपने इतने मैसेज भेजे नेटवर्क में, इतने भेजे कि आप क्या हो गए, फिर आपका नेटवर्क वहां पर डिस्टर्ब ना हो जाए किसी एक तो आप फॉरेन लोकेशन में हो, ओके, यू आर नॉट इन द होम लोकेशन, यू आर एट द फॉरेन लोकेशन, यू आर इन द फॉरेन नेटवर्क, एंड यू आर सेंडिंग सच सच मैसेजेस ओवर देयर। तो ये सारे मैसेजेस किसी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सॉलिसिटेशन मैसेजेस नेटवर्क को फ्लड ना करें। हालांकि इतने मैसेज तो आप भेजने वाले भी नहीं हो,
but still there is a precaution we have to take care. We have to make sure, we have to ensure that case solicitation messages do not flood the network. But basically mobile node can search for foreign agent endlessly sending out solicitation. जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के छोड़ेगा नहीं मैं, ठीक है, जब तक के मुझे एजेंट मिलेगा नहीं तब तक के मैं ये मैसेज सेंड करते रहूंगा, ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे यहाँ सर्वाइव करना है. I have to, I as a mobile node, I have to survive in this foreign network, and for surviving in the foreign network, I need these services, and these services can only be provided by the foreign agent. अब मुझे foreign agent मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने मैसेज भेजना चालू किया, एक मैसेज भेजा, पीरियोडिकली सेकंड मैसेज भेजा, पीरियोडिकली थर्ड मैसेज भेजा, भेजते जाओ जब तक के एजेंट मिलेगा नहीं, जब तक के मैं छोड़ेगा नहीं, ठीक है. तो एजेंट सॉलिसिटेशन के प्रोसेस में ये है टिपिकली. नाउ दिस इज द वाइवा क्वेश्चन, ओके, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन इट. टिपिकली अ मोबाइल नोड कैन सेंड आउट 3 सॉलिसिटेशन 1 पर सेकेंड. ये वाइवा क्वेश्चन है कि मोबाइल नोड कैन सेंड आउट 3 सॉलिसिटेशन 1 पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक भेज सकता है, वो भी मैक्सिमम 3, एज सुन एज इट एंटर्स अ न्यू नेटवर्क. ऊपर वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है आगे. इफ अ नोड डज नॉट रिसीव एन आंसर टू इट्स सॉलिसिटेशन इट मस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ सॉलिसिटेशन एक्सपोनेंशियली टू अवॉइड फ्लडिंग द नेटवर्क. पहले क्या किया, अंदर एंटर किया, ध्यान से सुनो, ठीक है, अंदर एंटर किया, एंटर होने के बाद में इसने सॉलिसिटेशन मैसेज, ठीक है, भेजना चालू किया, ठीक है, भाई हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना, ऐसा एक मैसेज भेजना, ठीक है, जस्ट किडिंग. तो एक मैसेज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट द सर्विसेज ऑफ द एजेंट, ओके, जो कि है फॉरेन एजेंट. सो फॉर अचीविंग एंड फॉर गेटिंग दो सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन एजेंट वी आर सेंडिंग दी सॉलिसिटेशन मैसेजेस, ओके, बिकॉज उसने जब कांटेक्ट नहीं किया तो हमारा काम है कांटेक्ट करना, मतलब मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है. एजेंट ने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, ठीक है, कोई एजेंट दिखाई नहीं आपको, तो आप जाएंगे और ऑफिस में जाके किसी चपरासी को पूछेंगे, किसी क्लर्क को पूछेंगे, भाई यहाँ पर थोड़ा सा अंदर वाला काम होता है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई होता है, देखो उधर चले जाओ टेबल नंबर 5 के पास में, वहाँ पर एक खड़ा रहेगा, उसको उसका बात करो. तो मतलब यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू रीच ओवर देयर एंड यू नीड टू आस्क रिगार्डिंग दिस सर्विस, ओके भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे चाहिए. ऐसे आप रियल लाइफ में करते हो. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एजेंट को सॉलिसिटेशन मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हाय हेलो मेरा नाम मुख्तार है, मैं इस एरिया में नया हूँ एंड आई वांट योर सर्विसेज, ओके प्लीज गिव मी योर सर्विसेज. तो पहला मैसेज भेजा, दूसरे सेकंड में दूसरा मैसेज भेजा. ऑब्वियसली आप इस जिस एरिया में है उस एरिया में आपको सॉलिसिटेशन का मैसेज आ जाना चाहिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा, 100% आ जाएगा आपको, ठीक है. इफ यू आर इन द न्यू एरिया, इफ यू आर इन द न्यू एरिया 100 नहीं 200% आपको उसका रिप्लाई आना ही आना है, ठीक है, बिकॉज वो जो एरिया है उसमें कोई ना कोई तो नेटवर्क का कोई रहेगा, एपी रहेगा, एक्सेस पॉइंट रहेगा, तो वो आपको उसका रिप्लाई देने वाला है. जब आपको रिप्लाई दे देगा तो आपका काम हो गया. फिर भी बोल रहे हैं कि 1 पर सेकेंड, 3 सॉलिसिटेशन मैसेजेस 1 पर सेकेंड एज सुन एज इट एंटर्स द न्यू नेटवर्क. जब भी आप नेटवर्क में एंटर करो, 1 सेकेंड में एक मैसेज भेजो, 3 सॉलिसिटेशन मैसेज आप भेज सकते हैं. अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको उसको डिक्रीज करना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो फ्लड कर दे नेटवर्क को, ठीक है, उससे अलग फ्लडिंग नहीं होने वाला और एक पे ही आपका रिप्लाई आ जाएगा. स्टिल द प्रोसीजर इज लाइक दैट. Now, discovering a new agent can be done anytime, not just if the mobile network is not connected to one. So this can be done at any time. After these steps of advertisement or solicitation, the mobile node can now receive a care of address. अब मिला इसको care of address, और ये care of address क्या करेगा, अभी ये सामने वाले को देगा, ठीक है. अब अगर कभी देखो, अब यहाँ पर आप यहाँ पे रियलाइज करो कि योर मोबाइल नोड हैज डन ऑल दैट एजेंट एडवर्टाइजमेंट, एजेंट सॉलिसिटेशन, जो भी उसने किया होगा, करने के बाद में उसको क्या मिला, केयर ऑफ एड्रेस मिला. क्या मिला भाई साहब, केयर ऑफ एड्रेस मिला. तो वो केयर ऑफ एड्रेस उसने क्या कर दिया, सबको पास कर दिया, अपने घर पे भेज दिया कि माँ जी अगर आपको कॉल करना है तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है. उसने सबको बता दिया कि भाई राइट नाउ आई विल बी बिजी एंड आई विल बी इन this foreign network for next 1 week, okay, if you want to call then you can call me, you can come, your messages will be
योर मैसेजेस मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन दिस केयर ऑफ एड्रेस। तो ये आपका केयर ऑफ एड्रेस जनरेट हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा केयर ऑफ एड्रेस आपको कैसे मिला। केयर ऑफ एड्रेस बड़ी मन्नतों से मिलता है, मतलब एजेंट को मनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तब जाके आपको केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा और आपकी उस नेटवर्क में पहचान बनेगी। ओके, आपकी उस नेटवर्क में पहचान, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहने के लिए नए गए हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग मच टाइम, 2:52 हो चुके हैं, बट मैं अब ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट में ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो आप किसी एरिया में न्यू रहने गए और आप बाजू वाले को, आपके पास फ़ोन नहीं कुछ नहीं, आप बाजू वाले को बोलो भाई साहब आपका केयर ऑफ, आपका फ़ोन नंबर दे दो, मैं सामने वाले को देना है, मेरे कॉल आएंगे तो ज़रा प्लीज़ मुझे बुलाना। तो आपको इमीडिएटली तो नहीं देगा, आपको 1 दिन 2 दिन देखेगा, आपसे बात करेगा, आपका स्वभाव देखेंगे, आपका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ देखेंगे। तब अच्छा लगा तो ओके भाई ठीक है, ये नंबर ले लो, हुआ तो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका कॉल आएगा तो आपको बुला लेंगे। तो मतलब थोड़ा टाइम के बाद में जैसे मिला, इन दैट केस वैसे ही हमारा मोबाइल नेटवर्क, यू कैन सी आवर मोबाइल नेटवर्क, हमारा मोबाइल नेटवर्क इस फॉरेन नेटवर्क के अंदर एंटर हुआ, ठीक है। एंटर होने के बाद में इसने अपने आप को एडवर्टाइज, इसने वहाँ जो एजेंट थे, एजेंट से कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन होने के बाद में ये क्या करेगा, इसको केयर ऑफ एड्रेस मिला, फिर ये अपना केयर ऑफ एड्रेस शो करेगा कि भाई साहब अगर किसी को, जैसे कि सीएन ने कांटेक्ट किया था, यहाँ पे जो आपका करस्पॉन्डेंट नोड है, ठीक है, तो करस्पॉन्डेंट नोड ने कांटेक्ट किया था, तो यहाँ पे जब वो यहाँ पहुंचा तो इसको केयर ऑफ एड्रेस किसने दिया, जो केयर ऑफ एड्रेस यहाँ से इसने इसको पास किया था, ठीक है। तो ये केयर ऑफ एड्रेस उसको मिला और ये केयर ऑफ एड्रेस से फिर आपका पैकेट यहाँ से यहाँ पे। ओके, समझ में आया आप लोग को? मैंने बीच में आप लोग को एक बार भी नहीं पूछा कि आपको समझा नहीं समझा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट एकदम फ्लुएंसी के साथ में था, इसके लिए मैं नहीं पूछ पाया। अब मैं पूछता हूँ आप लोग को समझा या नहीं समझा। हम लोग ने आज क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिवाइज यू। हम लोगों ने आज एजेंट एडवर्टीजमेंट किया है, ठीक है, कि कहाँ है भाई साहब, एजेंट डिस्कवरी, हाउ द एजेंट आर डिस्कवर्ड इन द फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। तो वी हैव टू मेथड फॉर दैट, वन इज एजेंट सॉलिसिटेशन, मतलब एजेंट अपने आप को एक्सपोज करे, या तो एजेंट सॉलिसिटेशन, मोबाइल लोड, एजेंट को सॉलिसिटेशन मैसेज भेजिए, हाय हेलो खाना खा के जाना, तो वैसा एक मैसेज भेजिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ठीक है, दोनों मेथड्स हैं। तो एजेंट एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है, एजेंट एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है, और एजेंट सॉलिसिटेशन में ऐसा होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। शाहरुख